This movie is encoded by Dr. Star. I know you're going to think that I'm exaggerating, but I swear to you, if a man is a good kisser, he can bring me to the brink of an orgasm without even touching me anywhere else. Someone was following me. I couldn't see him, but I heard his soft footsteps on the pavement. I knew there was an all-night diner nearby, and I sought refuge there. He came in after me. He was a total stranger, but he approached me and said, "I'm dying to do certain things to you." We were in bed, and we just finished making love. I asked him why all we do is sleep and make love. Nothing else. His response was, "What else is there?" I told him that for once I'd like to have a serious conversation about us. I should have been horrified, but strangely, I wasn't. I tell him I'm not afraid of him, and he better do exactly as I say. He agrees. I start by telling him to kiss me ever so gently. Then I tell him to lick me there. In practically no time, orgasms start running through me like little earthquakes, until I'm wet and exhausted. Sleeping and screwing. That's all we do. Finally, Brian says he'll listen. So I start talking about us, about our relationship. And I ask him if we're together because we love each other. You know what his response was? "Is this conversation a conspiracy on your part to make me impotent?" You know why I think David doesn't like to kiss? Because he's afraid. I remember once that he told me that he always feels this fear before we make love. It's almost like to David I'm this dark void that he can't enter into without a part of him being permanently changed, or sex is a very dark power. You know, I came out here to be an actress. Christ knows I've still got the looks. You probably think these boobs are fake, my living in Beverly Hills and all. Well, they're not. Want to see? All the women in my family have them. But personally, I think my legs are my best feature. Don't you, Doctor? Someone once defined a psychiatrist as a guy who goes to a strip show and looks at the audience. You're silky smooth, too. For the first 35 years of my life, that described me, Dr. Jonathan Brooks. I haven't waxed every month. Here. Feel. My practice was located in Beverly Hills. Not bad, huh? Yes, they're very smooth. And lately my clientele seemed to consist exclusively of the frustrated wives of high-powered men. Don't you think we've done enough acting out for one day, Margaret? In medical school, they teach you to detach. I know you want me, Dr. Brooks. You wouldn't have let me get this far. I just want you to act it all out. It's part of the healing process. And I have always known the value of that lesson. अपने जज्बातों को दबाइए मत डॉक्टर। मैं चाहती हूँ आप मुझे छूना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आप इन्हें कैसे संभालते हैं। इसीलिए तो मैं इन सेशंस को रिकॉर्ड करवाता ताकि इन चीजों का सबूत रहे। देखो, जब मार्गरेट जैसी औरत को ठुकराया जाता है तो अक्सर वो डॉक्टर पर बदतमीजी करने का इल्जाम लगा देती है। आप पर ऐसा इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। आपसे शरीफ मर्द मैंने देखा ही नहीं। शुक्रिया हेलेन। गुड नाइट। गुड नाइट। देर नहीं करना। नहीं करूंगा। अपनी भावनाओं को काबू में रखने के कई फायदे होते हैं। मेरे केस में इसका फायदा था मेरी बढ़ती तरक्की और मंगेतर के तौर पर एक खूबसूरत और कामयाब वकील।
तो मुझे चाहिए था। ये काम बहुत सुरक्षित है। जिंदगी का जुआ किसी और को खेलने दो। ओके, तुम भी करना। हाँ। आपका अगला अपॉइंटमेंट हाजिर है। कौन है? ये एक नई पेशेंट है। Laura Nesbitt. शुक्रिया हेलेन। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वो मेरी कुर्सी पर बैठी थी। आप जानती हैं, मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा मशहूर चुटकुला है कि जो कोई भी मनोवैज्ञानिक बनना चाहता है उसका दिमाग खराब है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस यही कि आप मेरी कुर्सी पर बैठी हैं। I'm sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल आप सोफे पर ज्यादा आराम से बैठ सकती हैं। मैं इन सेशंस को रिकॉर्ड करता हूं, इससे मुझे इलाज करने में मदद मिलती है। तो किस बारे में बात करना चाहेंगे आप? माफ कीजिए, ये बताना बड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं। मुझे पता ही नहीं मुझे तकलीफ क्या है डॉक्टर ब्रक्स। मतलब मैं सोने जाती हूँ और फिर कुछ डरावना घटने लगता है। ये जो आप डरावना कह रही हैं, मतलब कुछ बुरे सपने? मुझे नहीं पता कि वो क्या है। कुछ याद उनके बारे में? मुझे तो इतना याद है कि सुबह जब मैं उठी तो मैं अपने बिस्तर में नहीं थी। तो फिर कहाँ? किसी होटल में थी जहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगी। कभी नहीं जाएंगे से क्या मतलब? जहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाते। अच्छा। एक बात और, जब मैं जागती हूँ तो मैं नहीं हूँ, मैं किसी और के कपड़े पहने हूँ। किसके कपड़े? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कपड़े नहीं हैं। ऐसे कपड़े जो मैं कभी न पहनूं, जिन्हें पहनकर मैं एक क्या? एक वेश्या लगती हूँ। You see, अपने सपनों में मुझे जिस्मानी खेलों की आदत है। वही मेरी आमदनी का जरिया है। मर्दों की हर जरूरत को पूरा करना, हर किस्म के मर्द की। only I don't charge him. Why don't you charge him? It would be wrong. He is giving me as much pleasure as I'm giving him. He knows all my secret places. He knows what I need. He's slowly driving me mad. I'm no longer kissing or caressing, only clinging. I want him to come inside me, but he won't. So I surrender my body to him. I let his rhythm become mine. आप समझ रहे होंगे कि मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं समझते? नहीं। अपने सपनों में मुझे जिस्मानी खेलों की आदत है। वही मेरी आमदनी का जरिया है। मर्दों की हर जरूरत को पूरा करना।
उससे पैसे क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये गलत होगा। वो मुझे भी उतनी ही खुशी दे रहा है जितनी मैं उसे दे रही हूँ। वो मेरा हर राज जान चुका है। वो मेरी जरूरतें भी जानता है। कौन है ये परी? ओफो हैरी, अब नीचे रखो इसे। क्या करूं? जनता की सेवा और सुरक्षा यही पुलिस वालों का नारा है। और फिर मैं उससे बातें करने लगी। मैंने अभी अभी तुम पर जाहिर किया कि तुम्हें बेहतर सुरक्षा की जरूरत। कौन है ये? I wanted him to come inside me, but he wouldn't. एक नई पेशेंट। मैं कितनी प्यारी बातें करती है। हाँ हैरी, उसकी भूख अंदर से इतनी दबी हुई है कि वो वाकई अपने सपनों को सच मानती है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अकेली नहीं है जिसकी भूख दबी हुई है। काफी खूबसूरत है ये, तुम्हें उसकी तरफ दिलचस्पी दिखानी चाहिए। देखो हैरी, तुम एक पुलिस वाले हो, खामखा डॉक्टर बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मेरी दिलचस्पी सिर्फ एक डॉक्टर के नाते है। शायद तुम ठीक कहते हो, तभी तो मेरे पास गन है और तुम्हारे पास स्टेथोस्कोप है। कुछ भी होगे? हाँ, मेरे लिए भी लेगा। अच्छा जोनाथन, तुमने 5वें कत्ल के बारे में तो सुन ही लिया होगा। हाँ, पर क्या उसका बाकी के कत्ल से कोई ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल, कोई दरिंदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। एक और खूबसूरत लड़की की लाश मिली बिना कपड़ों के, जिसका बलात्कार किया गया है। कोई सुराग किया? ऐसा किसने किया? नहीं, कातिल ने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। हद है जॉन, चूंकि तुम पुलिस के फोरेंसिक्स एक्सपर्ट भी हो, मुझे उम्मीद थी तुम कुछ तो बता सकोगे। नहीं बता सकता, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि ऐसे खूनी अक्सर निचले दर्जे के मर्द होते हैं जो अपनी हरकतों से ऊंची सोसाइटी में दाखिल होना चाहते हैं। आखिर में बस वासना की ही इच्छा रखती है। साफ लफ्जों में वो अमीरों का शिकार करते हैं। वाह, ये जानकारी मुझे इस केस में उतना ही मदद करेगी जितना ये जानकर कि कातिल बचपन में अपना बिस्तर गीला करता था। हाँ जानता हूँ, और बस यही जानकारी है हमारे पास। और मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते हो। हाँ, हेलो लोरीन। Something wrong? No. Yes. मेरे साथ फिर से एक हादसा हुआ। अच्छा, क्यों ना तो मुझे खुलकर बता, और इस बार उसे याद करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं प्लीज, हिप्नोटाइज मत करना। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम थोड़ा रिलैक्स करो ताकि हम तुम्हारे दिमाग की गहराइयों से पर्दा हटा सके। अब अगर तुम सनग्लासेस हटाओ तो हम शुरू कर सकते हैं। प्लीज डॉक्टर ब्रुक्स, मैं ये नहीं करना चाहती। देखो, इलाज तभी कामयाब होता है जब मरीज इलाज करवाना चाहे। तुम चाहती हो ना कि तुम ठीक हो जाओ? हाँ। तो प्लीज। ये चोट तुम्हें कैसे लगी? कुछ खास नहीं, मैं अलमारी से टकरा गई गलती से। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मेरी बात मानो और सोफे पर आराम से लेट जाओ। मैं चाहूंगा कि तुम इस रोशनी पर जाओ। And think of someplace calming. तुम कहाँ हो? समंदर किनारे। गुड। अब समंदर की आवाज सुनो, लहरों को सुनो, लगातार बहते हुए समंदर को महसूस करो। उसका छूना बड़ा ही मधुर है। वो तुम्हें अपनी नर्म बाहों में समेट रहा है। महसूस करो। अपनी आंखें बंद करो। अब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। मेरे शब्द ही तुम्हारी सोच है। करने की कोशिश करो कि कल रात जब तुम सोने गई तुमने कौन से कपड़े पहने? कॉटन का पजामा। वो बड़े ही आरामदायक होते हैं।
और उनमें तुम सुरक्षित महसूस करती? सुरक्षित? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये बताओ कि जब तुम जागी तो क्या पहना था? कुछ नहीं, मैं बिस्तर पर थी बिना कपड़ों के। ठंड लग रही थी, मैंने चादर लेने की कोशिश की, हिल नहीं पाई। क्यों नहीं हिल पाई? मुझे नहीं पता, मेरे हाथ नहीं हिले। मेरे हाथ बिस्तर से बंधे थे। Not yet. Please, if you let me go, I'll do anything you want. You will do that anyway. You bastard! When I get out of this, I'll kill you. You'll never hurt a woman again. Ah! I scream obscenities at him, and I cry. Ah! No! He enters me. I scream in pain. I'm very loud. He's very angry. उसने क्या किया लॉरीन? उसने मुझे Where? आँख के पास। Laura, that... Laura! Laura! यानी मेरा पहला नतीजा गलत था। Her nightmares were real. बदकिस्मती से मुझे आगे जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जितनी जल्दी लॉरी नेस्बिट मेरी जिंदगी में आई उतनी ही जल्दी चली। Laura, this is a big mistake. We barely scratched the surface. You need more therapy. Everything is okay. I'm fine, really. I'll call you if I have a relapse. Laura. Laura? Helen, could you get Miss Nesbitt again for me, please? Certainly. Thank you. The number's disconnected. Do you have a card on her? Oh, yes. There's no address. Oh, she refused to give that to us. How do we bill her? Well, she pays in cash every visit. Oh, Dr. Brooks, I didn't think that would be a problem as long as she paid cash. It's all right, Helen. You've done nothing wrong. वही मेरी आखिरी नजरिया है, मर्दों की हर जरूरत को पूरा करना, हर किस्म के मर्द की। मेरे करीब आओ, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। तो मुझसे पैसे? क्योंकि ये गलत होगा। वो मुझे भी उतनी ही खुशी दे रहा है जितनी मैं उसे दे रही हूँ। जॉनथन? जानते हो? ओ डार्लिंग, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम भूल गए है ना? नहीं, मैं नहीं भूला। हाँ, तुम भूल गए। हम आज रात मेरी मम्मी के यहाँ जाने वाले थे ना, शादी की बात करने। ओ जॉनथन, तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम तो हमेशा हर बात याद रखते हो। मैं जानता हूँ, बस इस होने की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। मैंने क्या कहा था तुमसे? मुझे जिंदगी पर इसका असर मत पड़ने देना, इसलिए तो मैं इतनी अच्छी वकील हूँ। चाहे मेरा क्लाइंट डाकू हो या सन, मैं उनसे बराबरी का सलूक करती हूँ। अब चलो, चलकर मम्मी से मिले। डार्लिंग, क्यों ना आज की रात तुम खुद ही निपटा लो, मेरा सच में मन नहीं कर रहा है। जॉनथन, वैसे भी शेव करने और नहाने का वक्त नहीं है, पर याद रखना कि तुम मेरे बनाए शादी के प्लान पर कभी भी आपत्ति नहीं करोगी डार्लिंग। तुम जो भी करोगी सही करोगी। चलती हूँ। मैं अब उससे बातें कर रही हूँ।
मैं चाहती हूँ वो मुझे प्यार करे और मैं उससे लोरीन, 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 क्या हुआ? तुम बेहोश हो गई थी और आपने मुझे पकड़ लिया। हाँ। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें लेटाने। अपने बिस्तर पर? हाँ। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। नहीं, प्लीज प्लीज, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम भी और मर्दों की तरह हो, तुम्हें भी बस एक ही चीज चाहिए। शांत हो जाओ, मेरी बात मानो लोरीन, शांत हो जाओ प्लीज। लोरीन प्लीज, प्लीज शांत हो जाओ लोरीन। मैं यहाँ हूँ, बेडरूम में आ जाओ। मैं तुमसे पूछना भूल गई, अब ये क्या हो रहा है? ये मेरी एक पेशेंट है, क्या तुम जल्दी से मेडिकल किट से एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आओगी प्लीज? जल्दी करो, जल्दी। लोरीन शांत हो जाओ प्लीज। Between my legs, that's why you've been fucking with my mind. Let me go, God, let me go, please. No, God, let me go, let me go. मुझे ये नहीं चाहिए। कहाँ खाओ, कस के कहाँ खाओ? बस हो गया। छोड़ दो, नहीं, मुझे इंजेक्शन मत दो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अभी आराम से सो जाएगी। चलो चलते हैं, उसे सोने देते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। डार्लिंग, मैंने ये सब नहीं किया, वो अपने आप आ गई। उसे तुम्हारा पता कैसे मिला? मुझे नहीं पता। ओह जॉनथन, पता है हम एक दूसरे के लिए इतने सही क्यों हैं? क्योंकि हम दोनों की जिंदगियां पूरी तरह हमारे काबू में हैं। कोई स्कैंडल नहीं, कोई राज नहीं। इसीलिए मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। क्या तुम समझ रहे हो? अब समझे कि ऐसी बातें मुझे क्यों परेशान करती हैं? अपनी आंखें बंद करो लोरीन। क्योंकि तुम कल रात के बारे में सोचो, अपने बीते हुए कल के बारे में। याद करो कि कल क्या हुआ था। अपनी आंखें खोलो लोरीन। हेलो, ये कौन सी जगह है? तुम्हें क्या लगता है लोरीन? तुमने मेरे सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। मतलब ये एक साइकाइट्रिस्ट का क्लिनिक है। तुम ही हो ना वो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, डॉक्टर जॉनथन ब्रुक्स। I hear an intelligent man's orgasm is much more complex than the average man's. And the name is Lana, not Laura. हिप्नोटाइज करोगे? हाँ। कल रात के बारे में बताना चाहोगी मुझे? इसी तरह काफी पेशेंट्स को फंसाया है ना? मैंने ऐसा नहीं किया, वो तो बेईमानी होगी। बेईमानी? शायद, पर बहुत मत जाना। मैंने कल रात को क्या किया? पता नहीं, पर ये बता सकती हूँ कि मैंने ये नहीं पहना हुआ था। तो क्या पहना हुआ था?
मत कर डॉक्टर, याद रखो तुम एक मर्द नहीं हो, तुम एक साइकाइट्रिस्ट हो, मनोवैज्ञानिक। मैं साइकाइट्रिस्ट के नाते ही पूछ रहा हूँ। Oh, I see. फिर तो विज्ञान को ध्यान में रखते हुए मुझे जवाब देना ही होगा। No. I'll show you. Last night, I just stayed at home. Oh, there was that little incident, but it was nothing. Why don't you tell me about it? I was in my bathroom. I'd just run the water for a bath. I was getting undressed when I saw a reflection in the mirror. It was the man next door. He was watching me. What did you do? I took off my clothes. Slowly. First my top. Then my skirt. But I didn't get into the water just yet. I posed for him. I began moving from one side of the bathroom to the other. Very slowly. Very deliberately. Very nakedly. And then? Then I lowered myself into the tub. I made sure he could still see me. I began soaping myself. First my arms, then my neck, and my breasts. Then I slide myself under the faucet. I spread my legs under it. And I turn the water on. I understand your pain. All those women who aroused your desires and then said no. But I won't say no, Jonathan. Whatever you ask. Yes. Yes. 1,000 times. Yes. But not yet. You're not ready for me yet. Try it on one of your other patients first. मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हारे पास। लोरिन की प्रॉब्लम अब साफ थी। उसका दिमाग इतनी बुरी तरह से उलझा हुआ था कि उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। The bad girl Lana. I couldn't get Laura's words out of my mind. I try not to think about I'll send you someone. But then all of a sudden there's someone and I think, oh, I'd love to touch that. I wonder what he's like naked. But then I remember I'm married and I think I'll never experience another man's body. And I cry.
The problem was many patients transfer their lusts and desires to their therapists. How would I know the one she'd send? I guess I'm just bored. Have you considered having an affair? I wish it were that easy. I'm a married woman. I won't even consider making a move unless I first get a signal. A signal? That I'm open for approach. You know, when I cross my legs repeatedly. Dangle a shoe from my toe. Repeat his name during conversation. Well, why don't you give those signals? Who wants to give signals? The whole idea is to have someone pursue me. I want to be swept off my feet. Now at least I knew what to look for. I dreamt that I met someone, Jonathan. A stranger. A stranger that would make improper advances towards me. But I wouldn't repel him. He would see through my blouse. He would admire my breasts in all their fullness. He will be sexual in a way with me that I've never experienced, Jonathan. He'll take care of me, both body and soul. He'll know me better than I know myself. It was then that I knew that I desperately needed to see a psychiatrist. And after I saw him, I knew the psychiatrist desperately had to see me. Wait. Come here. यह अंधेरे में चढ़ा तीर हो सकता है। हमें मरने वाली के घर पर एक विजिटिंग कार्ड मिला था। पुलिस स्टेशन के बाकी लोग इस जगह को पहचानते हैं। यह खास जगह है जहां हर किस्म की भूख मिटाई जाती है। शायद कातिल ने यहीं से लड़की मंगवाई होगी, लेकिन उसे जिस्म की भूख नहीं, खून की प्यास थी। तुम्हें लगता है कि मरने वाली सारी वेश्याएं थीं? नहीं, कहने को तो सब कहती है कि वो मॉडल्स हैं और कई तो वाकई हीरोइन लगती भी है, और सब मॉडल्स है तो नहीं। तो फिर माजरा क्या है यारी? तुम मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? भाई मैंने सोचा कि तुम साथ रहोगे तो मुझे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आखिर तुम मनोवैज्ञानिक हो, मैं सवाल पूछूंगा, तुम उनके जवाब सोचना। He asked me to tell him something dirty, so I said, okay, the kitchen, the bathroom, the garage are absolutely filthy. What an asshole. Probably can't get it up. मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे यहाँ अच्छी चीज क्या है? वैसे हम यहाँ सभी की खातिर करते हैं, आपकी भी कर देंगे। चलिए देखते हैं। शुक्रिया। लड़कियों से बात करनी है। Whatever gets you off. Ma'am,
This is not a pleasure call. सर्च वारंट कहाँ है? ये पूछने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगा क्या? यूँ नहीं लगता कि इन्हें ऐसा तजुर्बा पहले भी हुआ है? तभी तो पूछ रही हूँ, सर्च वारंट कहाँ है? ना, हम यहाँ कुछ ढूंढ नहीं रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए कोई वारंट नहीं लगता। आप क्या बातें करेंगे? मेरी लड़कियां मॉडल्स हैं, वैश्याएं नहीं। तुम्हारी लड़कियों का पेशा क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। We're not vice. ऐसा आप कहते हैं, पर यहाँ पुलिस वाले आते हैं और हमें धमकी देते हैं कि अगर हमने उनकी मुफ्त में सेवा नहीं की तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। देखो, हम एक कत्ल की छानबीन कर रहे हैं, शायद कई कत्लों की। हमें शक है कि कातिल को किसी लड़की की सेवाएं उपलब्ध थी तुम्हारे यहाँ से। और मैं कैसे यकीन करूं? ठीक है, मैं हारा, तुम जीती। आपको बहलाना आसान, मुझे छानबीन करने दो। Harry. Hey, chill. Harry! Let Jesse rob this bank. I suppose you want some too. I beg your pardon? I think she likes you. There's nothing more thrilling to a girl when a man first considers her a woman. I bet you think I'm a grown woman. Everyone else around here treats me like I'm a child. Her breasts are just starting to distinguish themselves. That feels so good. You're making me so wet. They say a girl never forgets her first. Does it really hurt as much as they say the first time? She trusts you. You look gentle. Hey. पैसे दे रहे हो? और जुबान भी दे रहा हूँ कि कभी तुम्हें वेश्यावृत्ति के लिए गिरफ्तार नहीं करूंगा। अब हम उस लड़की से बात कर सकते हैं? ऐसी यहाँ 2 लड़कियां थी, एक चली गई। ठीक है, तो चलो उस लड़की से मिलवाओ जो नहीं गई। आप उसी से बात कर रहे हैं? अच्छा। मैं नहीं जानती कि मैं आपकी क्या मदद करूं, लेकिन मेरा कोई ग्राहक मेरी किसी लड़की को चोट नहीं पहुंचाता है। ओ, एक मिनट रुको, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? ऐसे पागल भी होते हैं जिन्हें औरतों को पीटने में मजा आता है? कोई किसी को पीटे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पागल है। ये सिर्फ एक चाहत है अपनी ताकत और विश्वास को महसूस करवाने की, जिस्मानी तौर पर। जॉन, क्या तुम्हारी समझ में कुछ है? ये क्या कह रही है? ये जो कुछ भी कह रही है वो सच है। ज्यादातर मर्द जालिम नहीं होते, लेकिन अपनी औरत से सब कुछ करवाने के लिए उन्हें जोर आजमाना पड़ता है। Accept. What is this here? You both are blowing smoke up my ass here? इन ग्राहकों के साथ हमें कभी कभी तकलीफ होती है। एक मिनट, उस लड़की का क्या जो छोड़कर चली गई, उससे संपर्क करने का कोई तरीका है? I wish. उसके लिए मैंने क्या क्या सोच रखा था। उस जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जिन्हें इस काम में मजा आता है। उसका नाम क्या है? कई नाम है उसके। वो अपने ग्राहकों की मर्जी के हिसाब से नाम बदलती रहती थी। ठीक है, इसे अपने पास रखता हूँ, पर ये मेरा कार्ड है। अगर वो तुमसे संपर्क करे तो मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है, आप दोनों कभी भी आ सकते हैं। वो तो हम आएंगे। चलो जॉन, चलते हैं।
जेनिफर, वो किचन में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनिफर ने मुझे पिक्चर देखने के लिए बुलाया, मुझे दो। हाँ डार्लिंग। हाय, पिक्चर देखने के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी। ये बताओ कि मेरी पेशेंट यहाँ कब से है? लाना करीब 1 घंटे से। बड़ी अजीब बात है, पर मुझे याद है तुमने कहा था उसका नाम लॉरीन है। क्या तुमने उससे बात की? No, we just sat and stared at each other in silence. Of course मैंने उससे बात की। किस बारे में? तुम्हारे बारे में, और क्या। चलो आओ, चलो। And after I saw him, I knew the psychiatrist would desperately need to see me. मैं यहाँ अब और नहीं रुक सकती। बंद करो उसे। जानो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम मैं सिर्फ इतना समझ रही हूँ कि मेरा मंगेतर अपनी पेशेंट के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैंने जो देखा वो गलत है? नहीं, पर क्या? क्या ये किसी नए किस्म का इलाज है? बताओ मुझे, तुम कर क्या रहे थे? क्यों ना हम दोनों शांत हो जाएं और इस बारे में ढंग से बात करें? पर तुम तो पहले से ही शांत नजर आ रहे हो जॉनथन, और तुम्हें मुझे से सारी बातें करनी है, तो प्लीज बातचीत शुरू करो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। गुड बाय जॉनथन। गुड बाय क्या मतलब है? कहाँ जा रही हो तुम? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें रंगरलियां मनाने के लिए सिर्फ एक जिस्म चाहिए। मैं इन सबसे ऊपर उठ चुकी हूँ और सोचा था तुम भी उठ चुके हो। मैं गलत थी। गुड बाय। उसे जाने दो, हमें उसकी जरूरत नहीं। तुमने किया, ये सब तुमने किया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। दफा हो जाओ। तुम वाकई ऐसा चाहते हो? मैंने तो वही किया जो तुम चाहते थे। जो मैं चाहता था? अरे तुमने उस औरत को मेरे पास भेजा मुझे फंसाने के लिए। मैंने उसे नहीं भेजा, मैं तो उसे जानती तक नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जी हाँ, तुमने खुद उसे अपने जाल में फंसाया। मैंने नहीं फंसाया। हाँ, मैंने फंसाया। अब तुम काफी कुछ सीख चुके हो। This movie is encoded by Dr. Star.
And then do you want to know what happened? The guy in the record store tried to pick me up. How did you feel about that? I was shocked. My husband was waiting in the car for me. No, I mean, what were you thinking while he was making the pass? Oh. I was thinking about his mouth. I wanted my mouth to be on his mouth. Thrilling, wasn't it? I bet you never felt so alive. That's exactly what it was like. He was a new thrill I wanted to try. But then I remembered my husband, and I didn't know what to do. Why are you smiling? He just reminded me of something Mae West once said in a movie. She's trying to choose between two men, one of whom she's already had. And so she says, caught between two evils, I usually choose the one I've never tried. I began dispensing advice that could easily blow up in my face. I was in total danger and yet felt safer than at any time in my life. The truth is, Dr. Brooks, I do it. If I could only figure out how to keep it from Leonard. Well, maybe you don't want to have an affair. Maybe you're just rationalizing. No. It's a real issue. Leonard knows where I am. Virtually every moment of the day. And he makes sure to call me wherever I am. Well, he can't call you here. I'll only take crisis calls during sessions. I hadn't thought about that. No, it wouldn't work. I can't give up my sessions with you, Doctor. They would keep me going. Who says you have to give them up? Dr. Brooks, are you, propositioning me? I don't know. Would you like me to? I don't know. I should be offended. No. Outraged. But I'm not. Yes. Your 2 o'clock is here. Thank you. Dr. Brooks, I want you to hypnotize me. Well, I thought you didn't like hypnosis. I don't. It's a necessary evil. I think I was raped last night. Raped? Are you sure? Do you remember it? No. Well, then how do you know you were raped?
When I woke up this morning, I was sore. Down there. And I smelled sinful. Sinful? Like a man. Musky with sweat. And there was something else. The faint smell of cologne. Possession. Well, I suppose I could hypnotize you to get your memory back, but that'd be just covering old ground now, wouldn't it? Why don't we just sit here at the table today and talk? Talk? About what? Oh, I don't know. Sex? Oh no, I couldn't talk about that. I think that might be part of the problem. Were you happy as a child? Yes. Boyfriends? No. Boys ignored me. You know, I find that hard to believe. I bet you were a very pretty girl. You know what I think? I think that when men look in your eyes, they dream about being happy. Oh, Dr. Brooks, I don't think you should say such things. Nonsense. And call me Jonathan. What's that? I don't know. Has my name on it. It's a key. And an address. Why don't we take a drive? यहाँ तो एक चिट्ठी पड़ी है। ये कमरा इस दुनिया का नहीं है जोनाथन। यहाँ सिर्फ सपनों की एक दुनिया है जहाँ हम रह सकते हैं। तुम्हारा जो भी चीज चाहता हो उसे मैं पूरा करूंगी। लाना। मैंने इंतजार करने का फैसला किया। हिलना मत। देखिए, आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। मेरे फ्लैट में? आपके फ्लैट में? जी हाँ, मेरे। अपने पैर बांधो। देखिए, मैं देखिए, अगर आप मुझे मेरी जेब में हाथ डालने देंगी तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिखा सकता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ किसी से मिलना है, अपने एक पेशेंट से। डॉक्टर इस वक्त घर कब से आने लगे? बांधो पैर। ठीक है, ठीक है। हथकड़ी लगाओ।
मैं एक चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। हाँ, वो काफी खतरनाक है। नहीं नहीं, मैंने उसे बांध दिया है, पर प्लीज किसी को जल्दी भेजिए। मेरी बिल्कुल हिलना मत। अपनी पिस्तौल मुझे दो। ओह, शुक्र है कि तुम आगे लाना। ये औरत समझती है कि मैं कोई चोर हूं, तो तुम प्लीज इन्हें समझाओ कि ये सिर्फ इनकी गलतफहमी है। Turn around. What were you going to do with my friend? Turn him over to the police. Take off your clothes. Lana, what are you doing? Just sit there and relax and enjoy it. No, get these handcuffs off me and let's get out of here. She's repressed, Jonathan. She finds an attractive man in her apartment, and all she can think of doing is calling the police. Do as I say. Don't you desire her, Jonathan? It's you that I want. And you'll have me. But she's new, unconquered flesh. And I want you to have every possible pleasure. Lana, this is crazy. Take her, Jonathan. You won't have this opportunity again. Remove his trousers. Doesn't that feel good? The police? Why would she call them? How about breaking and entering for starters, and now rape? Rape? Who did we rape? That woman. Where did she go? We're all alone, Jonathan. No, I mean, we just... It's late, Jonathan. I want to feel like a child being put to bed. Like a beautiful child. And you'll be in bed with me, Jonathan. And I will give you the most wonderful erotic dreams.
हेलो, डॉक्टर ब्रूक्स ऑफिस? नहीं, वो अभी तक नहीं आया था माँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। डॉक्टर ब्रूक्स ऑफिस? हाँ, मैंने उनसे कहा था कि आपने फोन किया था। बेथ, होल्ड प्लीज। आप लेट हो गए। हाँ, कुछ जरूरी काम था। कोई खत है मेरे लिए? बेथ 3 बार फोन कर चुकी है, क्लेरिसा 2 बार। वो कहती है आज आपसे मिलना जरूरी है और इंस्पेक्टर हैरी आपके ऑफिस में है। और हमारी बात अब तक नहीं हुई है। जोनाथन, एक बात बताओ, क्या लोग वाकई इससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं? अगर तुम चाहो तो, क्योंकि वही हिप्नोटाइज हो सकता है जो हिप्नोटाइज होना चाहता है। मुझे तो ये रुपया हटने का टोटका लगता है, और लगता है तुम और वो मैडम उन ग्राहकों के बारे में सही थे। उन सबके पास बहाने थे। हर ग्राहक के पास। हमने एक से पूछताछ भी की। गुंडा है छोटा सा, उसने फौरन अपने एक दोस्त का नाम बता दिया। उस दोस्त का पता चला? ना, अभी तक नहीं। वो अपने किसी अड्डे पर मिल नहीं रहा। उसकी खुशकिस्मती है कि ऐसी बातों का मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि लगता है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हैरी। यस, एक जरूरी कॉल है। देखो, अगर वो क्लेरिसा है तो। आवाज से लॉरेन लगती है। हाँ, 2 लाइन दो। हेलो, Len, is that you? Jonathan, we must have sex immediately. Yeah. हाँ, मेरे ख्याल से मैं कर लूंगा। हैरी, एक इमरजेंसी केस है, मुझे जाना होगा। ठीक है, मेरे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। जॉनथन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हेलन से अपॉइंटमेंट ले लो। जॉनथन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाय। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मुझे जज्बाती बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जॉनथन। पर ये गुलाब मुझे बेहद पसंद आए। They have all the virtue of mortality. They're born, they flower, and they die, just like people. The color is blood red, sensual.
Do you trust me, Jonathan? With my life. Good. I expect nothing less. What are you doing up? I got some things I gotta take care of at the office. Call in sick? No, I can't. I've been doing that for the past couple of weeks. I'm coming right back. Don't even try it. Save your little pecks on the cheek for Susie Homemaker, not for me. I'll be back soon. मेरे लिए कोई मैसेज है? नहीं। क्या फोन उठाने का इरादा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ कि आज के अपॉइंटमेंट्स रखने का भी आपका कोई इरादा नहीं है। तुम डॉक्टर ब्रुक्स हो ना? जी हाँ हूँ। आप कौन है? तुम मुझे नहीं जानते डॉक्टर, पर तुम मेरी बीवी को जानते हो, जेमा सिमंस। हाँ जानता हूँ। देखिए आज मेरे पास वक्त नहीं है और... कोई बात नहीं। मैं यहाँ बातें करने नहीं आया। तुमने बहुत बातें कर ली मेरी बीवी से। अब शायद तुम जेमा को किसी चीज के लिए नहीं उकसाओगे। Helen, what is it? मैं ये देने आई हूँ। क्या है ये? मेरा इस्तीफा। तुम मुझे छोड़ रही हो? पर क्यों? और कोई चारा भी नहीं है। मैं जिसकी इज्जत नहीं कर सकती उसके साथ काम भी नहीं कर सकती। आप अपने अपॉइंटमेंट्स नहीं रखते, अपने पेशेंट्स से झूठ बोलते हैं और सबसे गंदी बात, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। आप खुश रहें डॉक्टर ब्रूक्स। मेरे फोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स क्यों कैंसिल कर रहे हो तुम? I'm sorry, पर पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हारे खिलाफ मेरी इज्जत लूटने की रिपोर्ट दर्ज करने का फैसला किया है। मैं यही बताने आई थी। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि तुमने मेरा नाजायज फायदा उठाया है जॉनथन, ऐसे वक्त में जब मैं बिल्कुल बेबस थी। बुरा मत मानना, लेकिन चुप हो जाओ। हेलो। तुम क्या कर रहे हो डार्लिंग? मैं अपने एक पेशेंट के साथ हूँ। बहुत जरूरी बात है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ।
हाँ, मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हारे पास रहूं। ओह नो। रुको, मैं बाद में फोन करता हूँ। जॉनथन, प्लीज मत जाओ, मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए। अब क्या बात करनी है तुम्हें? जॉनथन, बताओ कैसा चल रहा है आजकल, कैसा महसूस कर रही हो? मुझे लगा कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। देखो, सबकी सोच एक नहीं होती। मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुमने भरोसा तोड़ दिया। देखो, मेरे ख्याल से तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हारे पास दिल नहीं पत्थर है। क्या मैं तुम्हारे लिए बस यही हूँ, बस एक और तुम्हारी ऐश करने की चीज? तो इसमें हर्ज ही क्या है? और एक बात बताऊं, वैसे भी तुम जॉनथन के लायक नहीं हो। मुझे ये बताने वाली तुम कौन हो? मैं हूँ जॉनथन की प्रेमिका। क्या? हाँ, तुम कौन हो? क्लैरिसा, ये लाना है और ये यहाँ पर कुछ पर्सनल बातें चल रही हैं। क्लैरिसा, क्लैरिसा। Oh, I remember now. You're the one that Jonathan fucked. Oh my God. Did you tell her that? Oh, don't be upset. You were very hot. We used you to get in the mood. मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना है डॉक्टर ब्रुक्स। बाकी की बातें तुमसे मेरा वकील करेगा। ये तुमने क्या किया लाना? मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। छोड़ दोगी? क्यों, मैंने क्या किया? जब मैं किसी मर्द को चुनती हूँ तो वो मुझे पूरा चाहिए। मैं उसे उसके काम से नहीं बांध सकती। तो ये क्या है? इसका मतलब बता सकती हो? वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने जा रही है और मैंने रोका तक नहीं। मैं यहां तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर जॉनथन? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं, तुम ये जानती हो। मेरी खातिर कत्ल करोगे? क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। क्या मेरे लिए खून करोगे? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है लाना। मुझे लगा तुम मेरे साथ इस आग में कूद जाओगे। कूद जाता लाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं किसी और की जान नहीं ले सकता। किसी को मार नहीं सकते। आप समझे किसी को मारना कितना आसान है। इतना ज्यादा मत सोचो मेरी जान।
अगर मौका सही हो तो कोई भी किसी का कत्ल कर सकता है। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। याद रखो, कभी हार मत मानना। Hello. Oh, hi, Harry. No, I haven't seen the news. Hold on a second. Police have yet to release the name of the suspect, but reports are he's been tied to at least one of the murders. Here comes the detective in charge. Detective Danoff, what evidence do you have linking the suspect to the murders? Lucy, you've been working the crime beat long enough to know that I can't divulge investigative details. Can you at least tell us why you arrested the man in custody? Sure. We found the murder weapon on him. The murder weapon? But I thought all the victims were strangled. Well, you see, after a couple of weeks of surveillance, we found that the man in question was in possession of 2 hands. Now, if you excuse me, Lucy, I've got work to do. Thank you very much. More on this story as it unfolds. Thanks, Lucy, and now let's check the weather on the local scene. The interrogation? Yeah, I guess I can come. Oh, and Harry, it's not nice to make fun of reporters. Okay. High tides early for all you surfers tomorrow. Sunrise at 6:15, sunset at 7:45. Guess we'll bring you sports. Yo. Nice. So how did you connect him to the murders? Guy simply confessed. To all 5 murders? Oh, that's the fly in the ointment. He only admitted to 1, victim number 5. That's why I need you here to get your personal opinion about this. Some real crazy stuff is going on. How'd you leave her? Dead? Tied up? Or did you take your rope with you for your next victim? What, are you deaf? I told you there was no next victim. It wasn't a rope, it was a bathrobe belt. I see. So it's just 1. Only 1. So what does that make you? Some kind of freaking hero because you only killed 1 instead of 5? Let me tell you something, buddy boy. You know, you'd make it a whole lot easier on yourself if you fessed up to all 5. You see, if you kill 5, that makes you insane. But if you only kill 1, you're just a nasty, slimy, garden variety, cold-blooded killer. I ain't insane. You're not insane! Oh, of course not, you're not insane. You just do murders because your chick tells you to. Is that the song you're gonna sing? She was no ordinary chick. Yeah, because my man, you were in love. You do anything she told you to. Love. It was sex, man. Pure sex. See, she was the hungriest piece of ass I'd ever had. Now, I'll tell you something. That sounds like someone I'd really love to meet. Yeah, well, I can't help you there, man, because I don't know shit about her. See, raw sex is impossible if you know too much about your lady. Because then she's no longer just a body.
एक बात बताओ, ऐसी क्या वजह थी जो उसने तुमसे ये खून करवाया? मुझे क्या मालूम, शायद जलन होगी। ले जाओ इस दरिंदे को मेरे सामने से। गंदी नाली का कीड़ा। कहता है गर्लफ्रेंड ने उसके हाथों कत्ल करवाया। क्या वो कोई आत्मा है? अक्स पिक्चर में अमिताभ बच्चन से सारे बुरे काम मनोज वाजपेयी की आत्मा करवाती थी। क्या आपको लगता है ऐसी कोई औरत है? मालूम नहीं। चलो देखते हैं कि हमारा होशियार मनोवैज्ञानिक क्या कहता है। बोलो जॉन, तुम इस बारे में कहां चला गया? वही मेरी आमदनी का जरिया है। मर्दों की हर जरूरत को पूरा करना, हर किस्म के मर्द की। ओह हाँ, यही वो लड़की है। वैसे मैं हैरान हूँ कि वो अपना इलाज करवा रही है। मुझे लगा यहाँ काम करना ही उन जैसी लड़कियों का इलाज है। हे, अगर आप दोबारा उससे मिले तो उससे कहना कि हमेशा उसका यहाँ स्वागत है। हाँ You murdered them. Are you all right, Dr. Brooks? Laura? I know I shouldn't be here. I was afraid to go to sleep. I didn't have any place else to go. It's quite all right. You said I murdered them. Have I done something wrong? Laura, we need to talk. Please, come, sit down. You're a very sick girl. You need help. Can't you help me? No, I've compromised myself, and you've done some things while you were unconscious that I really need to report before you can get the help you need. पुलिस को मत बुलाओ, उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है। हेलो लाना। नहीं, वो कातिल नहीं है। खून भले ही उसने किया हो, लेकिन करवाया तुमने है, उसी तरीके से जिस तरह तुम मुझे फंसा रही थी। उसी तरीके से नहीं। मौत तो एक जानवर था, मुझे वो पसंद नहीं था, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या समझ रखा है मुझे आप? एक मर्द काबू करने में आसान, अगर उसकी कमजोरी हाथ में आ जाए तो। कमजोरी? If it makes your dick hard, it's a weakness. लोरिन नाम की कोई है ही नहीं, है ना? अलग अलग पंछी के लिए अलग अलग दाना। मौस के साथ में सब कुछ सहने वाली दासी बनी, और तुम्हारे साथ एक मासूम अबला बेचारी, जिसके अलग अलग रूप थे। जोनाथन, लोरीन हो या लाना, तुम्हें मेरी ही जरूरत है। अगर पुलिस को फोन किया तो तुम्हें क्लैरिसा से कोई नहीं बचा सकता। मारने गई क्लैरिसा, सब मेरा यकीन करेंगे।
उसने अपनी वासना मुझ पर थोपने की कोशिश की और ऐसा करना बड़ी आम बात है। हो सकता है ये सिर्फ उसके जहन में हो या शायद उसके वीडियो टेप में। टेप्स कहाँ हैं? मैंने क्लैरिसा को भेज दी। क्या? साथ में तुम्हारी और बेथ की टेप्स भी। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो लोरीन? वही जो तुम चाहते हो, अपनी आजादी। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए खून करूं? मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मार डालो क्लैरिसा को। क्लैरिसा को? मुझे चाहते हो जॉन? नहीं। मान लो जॉनथन, शरीर की मृत्यु हो जाती है। इस पल में तुम मुझे इतना चाहते हो जितना तुमने कभी किसी को नहीं चाहा। अपने दिल की आवाज सुनो। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हारी हूं। आज एक छठी लाश बरामद हुई है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने सही आदमी को पकड़ा है या ये किसी और कातिल का काम है। अगर ये कत्ल भी बाकियों से जुड़ा है तो कुल मिलाकर 6 औरतों की हत्या की जा चुकी है। जाहिर है कि इस ताज़ा कत्ल से पुलिस काफी शर्मिंदा है और कोई जवाब नहीं दे रही है। मारी गई औरत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बाकी औरतों की तरह ये भी बेहद खूबसूरत औरत है। एक ऐसे शहर में जो खूबसूरत लड़कियों की खरीद, शायद हमें इतनी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंसान की जान की कीमत इतनी कम हो गई है। इस बारे में बताओगे? तुम्हें कैसे पता चला? वैसे इसकी तह तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही थी और वो तुम्हारी पेशेंट थी। वो कोई मामूली पेशेंट नहीं थी हरी, उससे मेरे गहरे संबंध थे। कुछ पीने को लाता हूं। ज्यादातर कातिल जिन्हें कानून पागल करार करता है, उनकी कामुकता को बचपन से दबा कर रखा जाता है। ये एक हकीकत है। कभी न कभी किसी न किसी ने उनसे कहा कि हवस बुरी चीज है, तो अपनी भूख का गला खोद देते हैं। पर जब आप अपनी भूख को मारते हैं तो वो मरती नहीं, एक भूखे जानवर की तरह मंडराती रहती है। उसने खुद को पेश किया और मैंने कबूल किया। उसने मुझसे कत्ल करने को कहा, उसका मजा लेते हुए, इस उम्मीद से कि मुझे भी मजा आएगा। और उससे मुलाकात के बाद पहली बार मेरे अंदर विद्रोह जागा। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे अपना भविष्य नजर आया। कोई कानून उसे सजा नहीं दे सकता। उसने कोई बुरे काम नहीं किए थे, सिर्फ अपने मर्दों से करवाए। इसलिए मैंने एक फैसला किया। मैंने लोरीन की गर्दन पर अपने हाथ रखे और दबाता चला गया। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था हैरी। नहीं करता तो अभी कत्ल करवाती। इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। और अब मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं,
नहीं, अब हमें एक एक और ड्रिंक लेनी चाहिए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना दोस्त। भाड़ में गया पानी। जॉन, तुम्हें याद है एक बार जब मैंने अनजाने में एक मुजरिम को गोली मार दी थी और तुमने मेरी मदद की थी। तुमने मुझे पुलिस की नौकरी छोड़ने से रोका था और उसके लिए मैंने कभी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। तुमने किया था। सही मायने में नहीं। मैंने शुक्रिया कहा था कि तुमने मुझे नौकरी छोड़ने से बचाया, पर दोबारा जीना सिखाया, उसका शुक्रिया नहीं कहा। यह सच है। अगर तुम ना होते तो मैं शराब के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई इसे बहुत ज्यादा पी ले तो अगले दिन याद ही नहीं रहता कि उसने क्या कहा या फिर क्या सुना। तो दोस्त, क्यों ना तुम कहते रहो और मैं पीता और क्या पता शायद कल का दिन हम दोनों के लिए बेहतर साबित हो। This movie is encoded by Dr. Star.